on the cloud computing, VMware, virtualization, and Enterprise 2.0 group. He has also worked as project manager, military decision support system, and tactical message solutions with Bharat Electronics. He was also a data security architect and wireless technology for tactical battlefields. I request and invite Lieutenant Colonel Prashant Mishra sir to address our young gathering. Hi, good morning. So, I'm just saying about maybe I've been given 10 minutes. So, esteemed faculty and yes, I think it is a great honor for me to address you. It is always a pleasure to address the young minds. And I'll tell you an example that it was in one of these addresses that I was introduced to a young guy who was in 12th. He wanted to join the army. And I just introduced him to a few of the things he has to do for joining the army. It was just basic knowledge. I mean, it would have been half an hour of introduction. And for 5 years after that event, he met me at the airport. He had not joined the army yet. He was serving in Dubai. What he thanked me is, he said, sir, few of the things you told me helped me. I did not realize what I told you. So I asked him. So I had told him that I had done a program called as Born to Win in the forces. Like Dr. Pandey was saying, all of us are winners here. You might get half a mark less, 1 mark less, but all of you are winners because you attempted. You had an exam, you are here to listen to us. You are winners, all of you. The problem is that we put handbrakes. You know, when you are taught driving, when initially you are taught driving, then the driver who teaches you, when he sits on the other seat, he puts his hands on the handbrake. Whenever you commit a mistake, he puts that handbrake on. I mean, that is the way I was taught in the army, and that is the biggest stopping point in learning anything new. There should be no handbrakes. Turn. Go full throttle ahead. There will be risks, there will be flaws, you will lose somewhere, but you will learn. With every flaw, you try to tweak your original idea and you go. That is what I told him and he reminded me. So I suddenly remembered, yeah. So these are the small lessons in life that help you out. And this is what you're learning today. Now, most of my lessons that I've learned were in the army, and most of these but still hold good for you because all of our struggles are same. What I learned the best in the army in the initial years, 3 months into service, and I was faced with a big moral dilemma. My dad was in the army, he was a colonel, and I had always seen a colonel as a guiding figure, as my dad. And there was a colonel in the army who was telling me to do something that I felt was not correct. There was a document, which was a confidential document, which had been lost. And it had been lost due to the fault of one of the officers, whom the commanding officer wanted to protect. Now, it is not correct to support this. But at the same time, I felt it very difficult to disobey the colonel, because I saw him as my father. That was the dilemma I was in. And that time I was advised by a senior officer that stand with the truth. So I stood with the truth. It was difficult. It was very difficult because the court of inquiry went on for 9 months, and I was in front of the summary of evidence panel, which is headed by a brigadier. Every time questions were asked, my own commanding officer was sitting right across, and I had to tell all the truth in front of him. And my commanding officer got fixed. Nothing happened to me, but I learned a big lesson of life. Whatever you feel is right as per you, you have to stand up with courage. And stand up with courage till the end. Don't lose that midway that, no, okay. Now, since the opposition has become strong, okay, I will change my statements. No, that is not the way forward. So that is one of the most important lessons I learned. Now, I was in the army, so I was faced with these dilemmas on a daily basis.
Now, why I'm telling you this? Because I want to tell you that if you create this template inside your brain, which guides you for every action, you will be a successful person. Anything you do. So that is why I am telling you this. And this is what Dr. Sunil told me, that can you guide the youth for jobs, for the future? You are ready for the jobs. You are ready for the future. Only thing is, we have got those handbrakes on. You have to remove those handbrakes, and that is what I want to tell you, how to do those handbrakes. So I tell you two short stories from Mahabharata. कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे थे कि युद्ध करो, तो उन्होंने पूरा गीता उपदेश दे दिया, बोला कि ये ही कर्म है, ये ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, ये जो आपके सामने खड़े हैं ये सब बढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा। पूरा गीता उपदेश पूरा हो गया, उसके बाद भी अर्जुन जो था वो तैयार नहीं। फिर कृष्ण ने अपना विशाल स्वरूप दिखाया और अर्जुन तैयार, लड़ाई हुई, सब मारे गए, कौरव के 100 भाई मारे गए, और आखिरी दिन जब दुर्योधन अपने डेथ बेड पे पड़ा हुआ, तो भीम के साथ उनका युद्ध हुआ था और उनकी जान तोड़ दी थी, तो उनका काफी पेनफुल डेथ है, वो लेटे हुए थे। उस समय कृष्ण भी उनके पास थे, उस समय गांधारी आई, तो उन्होंने कृष्ण को बोला, आप तो भगवान थे, अगर आप चाहते तो ये युद्ध आप रोक सकते थे, आपने क्यों नहीं रोका, मेरे सारे पुत्र मर चुके। तो कृष्ण ने बोला कि मैं ये युद्ध रोकना नहीं चाहता, मैंने हर वो चीज की ताकि ये युद्ध होए, लेकिन अगर मैं चाहता, अगर मैं अपना सुदर्शन उठाता तो मैं एक दिन में रोक सकता। कृष्ण ने ये डिसीजन बहुत पहले बना लिया था कि जो उस समय जो ग्रॉस मिसकंडक्ट ऑफ जस्टिस जो हो रही है, उसको खत्म करने के लिए यही एक तरीका। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो फिलॉसफी समझना, महाभारत डेस्टिनी और फेट के बारे में नहीं है कि ये तो मेरी डेस्टिनी है, ये तो मेरा फेट है, मेरी जिंदगी ऐसी है, नहीं। महाभारत है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने गीता में कुछ बोला, लेकिन अंत में उन्होंने गांधारी को सत्य बोला, क्योंकि गांधी में गीता बोल सकते हैं, गांधारी एक सत्य। तो ये पहला लेसन। दूसरा लेसन है, एक जब युधिष्ठिर में सच बोलते थे, उनसे झूठ बोलवाना था, जो उनके सामने ही अश्वत्थामा मारा गया, तो उसके लिए उन्होंने कहानी बताई उनको, एक ऋषि कौशिक बोलता है। ऋषि कौशिक ने कसम खाई थी कि वो जिंदगी भर सच बोलेंगे, उनको ये वरदान था कि वो सच बोलेंगे तो वो सीधे हवे में जाए, स्वर्ग में जाए। तो एक बार उनके पास दौड़ते भागते कुछ चोर आए, कुछ ट्रैवलर्स आए, और उन्होंने बोला कि हमें कुछ चोर लोग फॉलो कर रहे हैं और वो लोग हमें मार डालेंगे, हम यहाँ छुप रहे हैं, बताइए। चोरों को पता था कि ये जो है कौशिक, जो हमेशा सत्य बोलता है, उससे पूछा, उन्होंने बता दिया ये। अब जब ये पहुंचे ऊपर, वहां चित्रगुप्त के सामने खड़े हुए, चित्रगुप्त ने बोल दिया, जाइए नरक में जाए, नरक में जाए। क्यों भाई, तो जिंदगी में सच बोला, मैं कैसे नरक में जा सकता हूँ? उसने बोला कि आपने जो सच बोला उसकी वजह से कुछ लोगों की जान गई, आपके पास दो ऑप्शन और थे। अगर आप ये बोलते कि मैं जानता हूं पर मैं बताऊंगा नहीं, या आप चुप रहते, तो शायद आपकी पिटाई होती, लेकिन उन लोगों की जान बचती, तो इसलिए वो नरक में गए। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि झूठ बोलना चाहिए, बट देयर इज ऑलवेज अ ग्रेटर गुड। अब लोगों को ग्रेटर गुड डिसाइड करने में डिफिकल्टी होती है। व्हाट इज द ग्रेटर गुड? क्या मैं जब अपनी ट्रेन में जा रहा हूँ, मेरी बूढ़ी माँ बैठी हुई है नीचे, उसके लिए सीट लेने के लिए क्या मैं रिश्वत देके और कंडक्टर से सीट लूँ? क्या वो इज दैट अ पॉइंट ऑफ डिसीजन? इज अ डिलेमास। क्या करना चाहिए? आपने तो पहले ऑप्शंस वर्कआउट करने चाहिए। तो बूढ़ी माँ को आप लेके जा रहे हैं, तो आपने उसको सीट कंफर्म लेनी चाहिए। तो ये जो डिलेमास होते हैं कि हायर गुड क्या होता है, तो मैं
चिल्लाया जाता है, the country comes first always in everything. That is important. एंड सबसे बड़ी आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल की कंट्री होती है, अच्छी टोल यही बोलते हैं। अगर आप देश के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती, वही बनना है। अभी हम लोग एक ब्रिटिश द्वारा सिखाई हुई एक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर करके क्लर्क्स बन रहे। क्लर्क्स नहीं बनना। यंग बच्चे आते थे टाटा में इंजीनियर्स बनने के लिए, ऐसे ही आप लोगों के साथ ग्रेजुएशन करके, बीटेक करके, MCA, BCA, उनको प्रैक्टिकल नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता कि चिट्ठी क्या कैसे बनाना है उसको। अब ये इस फेस्टिवल में जो आप सीख रहे हो, दैट इज गुड, यू आर प्रैक्टिकली सीइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो फर्स्ट रिमूव योर हैंड ब्रेक्स, देन आइडेंटिफाई विद योर कंट्री, एंड देन यू विल नो व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज देश को बहुत सारी चीजें चाहिए ना। जॉब्स आपके पीछे भाग के, जॉब्स की चिंता करोगे तो जॉब नहीं मिलेगा। तो हम लोग, मैं बताता हूँ, एक इंडोनेशिया गया था मैं, सिंगापुर गया था मैं एक सेमिनार जिसमें डिफेंस और पुलिस के इक्विपमेंट होते हैं। वहाँ पे एक इंडियन स्टूडेंट आया, उसने मुझे बोला कि सर ये मैंने बनाया है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ कमेंट्स दें। ये नहीं कि मुझे आप जॉब में ले लें, आप मुझे आइडेंटिफाई करें, मैं रिज्यूमे भेजूँ ना। उसने बोला सर ये मैंने UAV बनाई है, ये UAV में फ्लाई करता हूँ थर्मोकोल की, और आप मुझे बताइए इसमें क्या करें। ऑटो पायलट सब कुछ, जो भी टेक्नोलॉजी वो सोच सकता था वो सब डाल के उसने बोला कि ये मैं चाहता हूँ कि इट इज यूज्ड फॉर लुकिंग आफ्टर एल्डरली पीपल। घर के अंदर बूढ़े लोग होते हैं, उसके लिए इसमें मैंने मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली है। ये आपका टेम्परेचर ये वो देख के कहीं गिर जाती है आपकी मदर या कुछ, तो वो इन्फॉर्म कर दिस इज हिज ओन आइडिया एंड ही हैज डन इट। तो वो क्या मार्केटेबल है? मे बी नॉट, उससे बहुत सस्ते बहुत बेटर प्रोडक्ट्स अवेलेबल, बट इसने अपने आप कंसेप्ट डेवलप किया। ये कंसेप्ट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्रिएटिविटी आना अंदर बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्रिएटिविटी तभी आती जब आप हैंड ब्रेक हो, तब नहीं आती जब आप हर जगह हैंड ब्रेक लगा के बिजनेस में चल यार करूँ या ना करूँ, इतना टाइम इसमें खर्च करूँ या ना करूँ, बड़ा रिस्क ये हुआ। तो यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, और मैं सब कुछ एक्सटेंपोर बोल लिया, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 मिनट लगाऊंगा। जस्ट गो थ्रू व्हाट इंस्पायर्ड मी और समथिंग। सो जो ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो हैंडब्रेक्स में नहीं काम करते। टाटा ने जब टाटा स्टील स्टार्ट की तो टसल डॉन कहते ऐसे ही घूमते थे जब थी टाटा, और उन्होंने वहाँ पे देखा था कि सारी मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी की, सब कुछ जर्मनी में ही। तो उन्होंने बोला कि फिर उनके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक की कि यार देश स्ट्रॉन्ग कैसे हो। इस सारे इंडस्ट्रियलिस्ट में एक चीज आप देखोगे, वो देश के लिए सोचते हैं। जो सक्सेसफुल है, जो टॉप पे है, वो देश के लिए सोचते हैं। अगर आप लोगों को मीडिया से, सोशल मीडिया से जो मिलता है वो अलग बात। और उन्होंने स्टील टेक्नोलॉजी लगाई है। उस समय रेलवेज के जो चेयरमैन थे, एक ब्रिटिशर्स में, उन्होंने बोला कि इफ यू आर एबल टू बिल्ड दिस ग्रेट स्टील फॉर द इंडियन रेलवेज, तो आई विल ईट 1 पाउंड। और उन्होंने बना के दिखाया, एंड ही टोल्ड हिम, लुक आई मेड नॉटी। वो होना चाहिए आपके ऊपर कोई उंगली उठा के। जब मानिशा होते थे, जब चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, तो बहुत बुरी हालत थी। मेरे डैड उस समय थे आदमी, और उसमें जब मानिशा जस्ट टेक ओवर किया था उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में फोर्ट को जंग फॉल के बाद, तो वो बोलते थे कि देयर विल बी नो रिट्रीट विदाउट माय ऑर्डर्स एंड देयर विल बी नो ऑर्डर्स फॉर रिट्रीट। सिंपल। इंडियन पॉलिटिशियंस ने देश की आर्मी को एक महत्व दिया, एम। वो एम है कि नॉट वन इंच ऑफ द टेरिटरी विल बी लॉस्ट। ये 1947 से लेकर आज तक ये चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट there is a document which states that you take back the Pakistani occupied territory, you have to take back the Chinese occupied territory. वो चेंज नहीं हुआ है, किसी के दम नहीं है कुछ चेंज करना।
ये जनरल नॉलेज हमने किया। और 71 में हम उस स्टेट में थे कि हमने एक नया देश डेवलपमेंट कंट्री ने एक नया देश अपना देश। तो ये लीडरशिप और एक और अजीत जोगल जी बोलते हैं कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड टेक देम राइट। कई लोग, कुछ लोग बोलते हैं रतन टाटा के बोले, कुछ लोग जिन्ना के नाम से बोलते हैं, बट रिमेंबर दिस, टेक ए डिसीजन, टेक इट फास्ट एंड देन मेक इट राइट। वेट मत करो, कहीं ज्वाइन करना है, कुछ भी करना है, जिंदगी में कुछ करना है, टेक इट क्विकली एंड वर्क टुवर्ड्स एंड मेक इट राइट। So with this I will end. Thank you very much. All the best. Thank you.